Hello student, in the previous video we have discussed the triangles, the properties of triangles, congruency of triangles, and then relation related to inequalities in a triangle. Now today we discuss a quadrilateral. Quadrilateral is a polygon. Triangle also a polygon, quadrilateral also a polygon. Polygon is a figure, closed figure, bounded with line segments, which are known as sides. So in quadrilateral is bounded by four sides. We have so many examples in our daily life which are in the form of quadrilateral. For example, if you look at the door, the surface of door is a rectangle. The rectangle is a type of quadrilateral. The top of table also a rectangle. Now the floor of the room, walls, even the surface of your notebook or textbook is a form of rectangle. So we deal so many examples which are in quadrilateral form. Now we have discussed the properties of the quadrilateral. First property is the angle sum property of a quadrilateral. So first, suppose this is a quadrilateral. ABCD. ABCD is a quadrilateral. Here it is bounded with four sides: AB, BC, DC, and AD are sides. AB, BC, CD and AD are the sides of a quadrilateral. Now these are known as the angles: angle A, angle B, angle C, angle D. There are four sides, four angles: angle A, angle B, angle C and angle D are the angles of quadrilateral. Points A, B, C and D are the vertices. Point A, where the two adjacent sides meet, known as the vertices. Now, if we join the opposite vertices, if we join A to C, then what we have? And B to D. AC and BD are the diagonals. So these are the components of the quadrilateral. It has sides, it has angles, it has vertices and it has diagonals. Okay. Now the basic property of this quadrilateral is the angle sum property. Angle sum property of quadrilateral. In triangles we have also learned the angle sum property of a triangle. In triangle, the sum of interior angles is 180 degree, and in quadrilateral the sum of interior angles is 360 degree. So here in quadrilateral ABCD, what we have: angle A plus angle B plus angle C plus angle D is 360 degree. So this is known as the angle sum property of a quadrilateral. Okay. Now we have think about that कि ये आया कैसे. तो ये बहुत सिंपल है. ये it is a it can be proved with the help of angle sum property of a triangle. Now look at, if this is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral. Now if you draw a diagonal BD, then diagonal divide it into two triangles.
Okay. Now in quadrilateral ABCD, BD is a diagonal. Now what we have, by the angle sum property, by the angle sum property of triangle. So in triangle ABD, what we have? Angle 1, angle A plus angle 2. Angle 1 plus angle A plus angle 2 is 180 degree. And in triangle BCD, suppose this is angle 3, this is angle C, and this is angle 4. So angle 3 plus angle C plus angle 4 is 180 degree. This is by the angle sum property of triangle. Now if we add these two, what we have? Angle 1 plus angle 3 plus angle A plus angle C plus angle 2 plus angle 4 is 180 plus 180. Okay. Now look at here, angle 1 plus 4. Angle 1 plus angle 4 is what? Angle D. So angle D, angle 3 and angle 2, their sum is angle B. Then plus angle A plus angle C is 360 degree. So this is the sum of the interior angles of a quadrilateral. Okay. Now after the angle sum property of quadrilateral, we come to the types of quadrilateral. अब देखिए quadrilateral में क्या है? There are 4 sides. Okay. Here ABCD is a quadrilateral. AD and BC are the opposite side. AB and CD are the opposite sides. So if a pair of opposite side are parallel, then it is a trapezium. Trapezium is a type of quadrilateral. इसमें a pair, ये इंपॉर्टेंट बात है, a pair of opposite sides are parallel. तो यहां देखिए किस तरीके का, मान लीजिए ये इस साइड के पैरेलल है, so here ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. Why? Because AD is parallel to BC, but AB is not parallel to CD. So in a quadrilateral, if a pair of opposite sides are parallel, then it will be a trapezium. What happened when both the pairs of opposite sides are parallel? If both the pairs of opposite sides are parallel, both the pairs of opposite sides are parallel, then it is a parallelogram. It is a parallelogram. तो ये एक parallelogram है. यहाँ पर देखिए, suppose if this is PQRS, so in PQRS, PQ is parallel to SR. PQ is parallel to SR and QR is parallel to PS. So both the pairs of opposite sides are parallel, so it will be a parallelogram. So basically there are two types of parallelogram. One more thing which we have, two types of
quadrilateral. One more thing which we have to know about the quadrilateral is a convex quadrilateral and concave quadrilateral. यहाँ पर concave quadrilateral and second is convex quadrilateral. ये किस तरीके कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या है? ये आपने कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो वर्ड है वो फिजिक्स में साइंस में जब आपने लेंस या मिरर्स पढ़े होंगे वहां पर ये पढ़ा होगा, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में भी ये टाइप होता है. देखिए कैसे, ये एक क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा भी बन सकता है, ए बी सी एंड डी, या इसको हम दूसरा नाम दे दें. सपोज ये एल एम एन और ओ, एल एम एन ओ, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है. अब यहां पर इसमें और इसमें क्या अंतर है, या इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या डिफरेंस है? तो ये एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है. अब देखिए यहां एक चीज हम देखें कि मान लीजिए हमने ये क्वाड्रिलेटरल लिया है ना, यहां पर हमने कोई भी, इफ वी टेक 2 पॉइंट्स इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल एंड इफ वी जॉइन देम, यहां हमने P और Q को ज्वाइन किया, मींस इफ वी टेक एनी 2 पॉइंट्स इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल एंड इफ वी जॉइन देम, that line segment by joining the two interior points of the quadrilateral does not intersect the sides of the quadrilateral. यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम 2 पॉइंट्स लें, उनको एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करें और वो लाइन सेगमेंट उस क्वाड्रिलेटरल के साइड को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तब ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स. ये भी कॉन्वेक्स है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आप कहीं पर भी 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, इनको ज्वाइन कर दें, ये लाइन साइड्स को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. बट यहाँ देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में एक पॉइंट हमने यहाँ लिया, सपोज ये सपोज एस है और ये आर है, और एस और आर को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया. तब क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन सेगमेंट है एस आर, ये एल एम को इंटरसेक्ट कर रहा है और एस एन को भी इंटरसेक्ट कर रहा है. Okay, here this line segment SR intersecting the sides of a quadrilateral, so it is known as the concave quadrilateral. Okay, तो जिस भी क्वाड्रिलेटरल में किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को लेने से वो लाइन सेगमेंट क्वाड्रिलेटरल के साइड को इंटरसेक्ट करता है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. और जहां पर ये लाइन सेगमेंट विच आर ज्वाइनिंग बाय द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, देन दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. तो ये हमारे पास टाइप्स थे. अब ये जो हमने ट्रेपेजियम पढ़ा हुआ है, इसमें तो एक ही पेयर पैरेलल होता है. पैरेललोग्राम में बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, तो अभी हमने क्या क्या चीजें देखी, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में कॉनकेव कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल देखा, और अकॉर्डिंग टू द साइड्स ऑफ पैरेलल साइड्स, तो हमारे पास एक ट्रेपेजियम है और एक पैरेललोग्राम है. अब हम आगे जो हमारा पूरा चैप्टर है, इसमें हम लोग मेनली जो बात करेंगे वो पैरेललोग्राम से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे. तो चलिए हम टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स को बात करेंगे आगे, है ना. Now we come to the types of parallelogram. Suppose simple, in this is a parallelogram. Okay, ABCD is a पैरेललोग्राम. अब ये पैरेललोग्राम है, तो इससे आपको क्या मिल रहा है, डेफिनेशन क्या है, इफ बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, means AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. Okay, then it is a parallelogram.
अभी हमने साइड से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी देखा. अब व्हाट हैपेंड अबाउट दिस एंगल. मान लीजिए ये जो पैरेललोग्राम है इसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये इसका एक एंगल राइट एंगल है. तब हम क्या कहेंगे उसको. देखिए मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है ना. इसी को हमने ऐसा शिफ्ट कर दिया PQRS. ये एंगल 90 है तो ये सारे एंगल्स कैसे हो जाएंगे 90 हो जाएंगे क्योंकि ये पैरेलल साइड्स है. ये ट्रांसवर्सल है तो को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होगा. one angle is 90 so other also be 90 degree. Okay, now so if each angle so this is known as rectangle. अब rectangle क्या हो गया. rectangle is a parallelogram टाइप ऑफ पैरेललोग्राम क्योंकि इसमें भी अपोजिट साइड्स कैसे होंगे पैरेलल होंगे. बट इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है. यहां पर ये एंगल जो है वो डिफाइंड नहीं है कितना होगा. बट सेकंड फिगर में ये एंगल 90 डिग्री है. सो इफ an angle of parallelogram is 90 degree or right angle then it will be a rectangle. यदि कोई भी एक एंगल 90 हो गया तो क्या होगा ये भी 90 होगा ये भी 90 होगा ये भी 90 होगा. ये प्रॉपर्टीज में आगे क्वेश्चन के फॉर्म में भी है और इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं. तो ये रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. अब देखिए ये साइड्स अभी अलग है. ये PQ और RQ आर डिफरेंट. दोनों अलग अलग है. इनके मेजरमेंट्स डिफरेंट. व्हाट हैपेंड if these two becomes equal, adjacent sides become equal in a rectangle if adjacent sides are equal. देखिए मान लीजिए ये अब यहां पर ये इक्वल हो गया. ये पैरेललोग्राम में है. LMNR ये 90 डिग्री है. ये इसके पैरेलल है. RL is parallel to NM. साइड्स पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम है. बट यहां पर ये जो साइड है LM और NM ये इक्वल है तो ये चारों साइड्स कैसे हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे. तो यहां पर इन दिस इज नोन एज स्क्वायर. स्क्वायर में क्या होगा. स्क्वायर इज अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का ही एक फॉर्म जो है वो स्क्वायर है. या हम कह सकते हैं रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का फॉर्म है तो स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम का टाइप होगा. यहां पर एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. दैट इज all the sides are equal. लेकिन यहाँ एक चीज और ध्यान रखना. अभी हम लोग यहाँ साइड्स की बात कर रहे हैं लेकिन साइड्स की बात किसकी कर रहे हैं रेक्टेंगल की कर रहे हैं क्योंकि रेक्टेंगल में ईच एंगल इज राइट एंगल. ओके तो राइट एंगल स्क्वायर में अब दो चीजें हमारे पास क्या होंगी. ईच एंगल इज राइट एंगल एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल देन इट विल बी अ स्क्वायर. एक और होता है रोम्बस. अब देखिए ये और जो पैरेललोग्राम है इसकी साइड्स तो इक्वल हैं. ये जो पैरेललोग्राम है मान लीजिए ये है DEFH. ओके यहां पर ये साइड इसके इक्वल है. ये चारों साइड्स इक्वल हैं बट ये एंगल 90 डिग्री नहीं है. यहां पर साइड्स इक्वल है एंगल 90 डिग्री है. यहां पर साइड्स इक्वल है बट एंगल 90 डिग्री नहीं है. तो यहां पर ये रोम्बस होगा. दिस इज नोन एज रोम्बस. तो रोम्बस की डेफिनेशन क्या होगी. इन अ पैरेललोग्राम if all sides are equal then it is a rhombus. ओके तो ये कुछ टाइप्स हैं. इसमें एक और टाइप है पैरेललोग्राम का टाइप तो नहीं बोलेंगे बट इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ये क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है वो है काइट.
काइट आपने देखा होगा, जिसको हम लोग पतंग बोलते हैं, वो क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है कि ये साइड्स इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो ये ABCD जो है, ABCD इज अ काइट। इसमें क्या होगा कि अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, बट इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, काइट इज नॉट अ parallelogram, okay, but it is a quadrilateral, but in kite the adjacent sides are equal, okay। तो ये कुछ टाइप्स थे। अब हम देखेंगे पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, ओके। नाउ हियर वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम्स। ये स्टेटमेंट्स हैं जो प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की, इनको हम प्रूफ करके भी देख सकते हैं, कुछ को हम करके बताएंगे और कुछ को आप भी करके देख सकते हैं, है ना, सबका लगभग कॉन्सेप्ट एक जैसा है। तो यहाँ एक पहला थ्योरम है, थ्योरम 8.1, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, आप डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो वो डायगोनल पैरेललोग्राम को टू ट्रायंगल्स में, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। देखिए कैसे, सपोज this is a parallelogram, okay, suppose this is ABCD. Now ABCD is a parallelogram in which AB is parallel to CD and AD is parallel to BC and AC is its diagonal and AC is a diagonal। हमने एक AC डायगोनल ड्रॉ किया। अब ये डायगोनल क्या कर रहा है, आपको डायग्राम में दिख रहा है कि इट डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल इनटू टू ट्रायंगल्स, वन ट्रायंगल इज ABC एंड अनदर इज ADC। तो आपको ये बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। देन triangle ABC is congruent to triangle ACD। ये आपको प्रूफ करना है, ये क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए यदि हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हमें जो 5 प्रॉपर्टीज हमने कॉन्ग्रुएंसी के लिए देखी थी, आइदर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी और एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी और एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी या साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी या फिर RHS कॉन्ग्रुएंसी, ये 5 थ्योरम्स हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए। यहाँ पर देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए in these two look at here, now AB is parallel to CD, okay, AB is parallel to CD, okay, now AB is parallel to CD and AC is transversal and AC is a transversal, okay। Then what we have, angle 1 and angle 2 must be equal, angle 1 equals to angle 2 by alternate interior angles, okay। Similarly the second pair BC is parallel to AD, BC is parallel to AD and AC is a transversal, AC is the transversal। Then what happened, this angle, angle 3 equals to angle 4। देखिए ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, एंगल 3 और एंगल 4 कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो एंगल 3 equals to angle 4 again by alternate interior angles, okay। 1 equals to 2 and angle 3 equals to angle 4 and AC is the common, AC is the common side। Now in triangle ABC and triangle ADC, okay, what we have, angle 1 equals to angle 2, angle 3 equals to angle 4, we have already proved, and AC is common to both, AC
equals to AC. It is a common side. AC is a side of triangle ABC and triangle ADC. Now, in these two triangles, two angles and included side, angle, side, angle. So, by angle, side, angle congruency, triangle ABC is congruent to triangle ABC is congruent to triangle CDA. ये CDA क्यों लिखा हमने, ACD क्यों नहीं लिखा? ACD is a name of triangle, but when we write the congruency, we have to write the correspondingness. Point A correspond with point C, क्योंकि A angle 1 is same as angle 2. Angle A vertex A पर बन रहा है और angle 2 C पर बन रहा है दूसरे other triangle में, दूसरे triangle में. तो ये congruent हो गए और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. अब देखिए कॉन्ग्रुएंट होने से ये पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया, लेकिन और इसके आउटकम्स क्या क्या है, आउटकम्स भी हम देखें. आउटकम्स ये हैं कि जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनकी अपोजिट साइड्स कैसे होंगे, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होंगे ट्रायंगल में. यहां से देखिए जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो साइड अपोजिट टू एंगल 1 इज BC और एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के. इसका अपोजिट साइड क्या होगा अदर ट्रायंगल में, AD एंड AB is the side opposite to angle 3 is same as 3 is same as 4, so its opposite side is CD. ये क्यों होगा, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. तो देखिए अब हमारे पास एक नया रिलेशन यहाँ पे मिल गया. क्या मिल गया, AB is equals to CD and BC is equals to AD. माने ये क्या है, AB, CD, BC, AD, ये क्या है, these are the sides of parallelogram. तो अब यहां से हमारे पास एक सेकंड स्टेटमेंट मिल गया कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम जिसको हमने कहा थ्योरम 8.2. ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. और ये जो स्टेटमेंट है ये थ्योरम 8.2 है. तो 8.2 को प्रूफ करने का भी तरीका यही है कि आप एक पैरेललोग्राम है उसमें आपको प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं. आप डायग्राम बनाइए, एक डायगोनल बनाइए और उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए और कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि आपने थ्योरम 8.1 में किया है कि यदि इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स जो है वो पैरेललोग्राम को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है. तो ये आ गया और इससे आप ये रिजल्ट लिख सकते हैं. तो इस तरीके से हमने थ्योरम 8.2 देखा कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ओके, नाउ द नेक्स्ट theorem 8.3, it is a converse of 8.2. 8.2 क्या था, it is a property of parallelogram कि opposite sides are equal. Now its converse is in a quadrilateral, if each pair of opposite sides are equal then it will be a parallelogram. For example यहाँ पर देखें कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है. अभी ये दिख आपको अपन ने डायग्राम बनाया कैसा, पैरेललोग्राम जैसा बनाया, बट ये हम बोल नहीं रहे कि ये पैरेललोग्राम है. ये क्या है, ये quadrilateral है. ABCD is a quadrilateral. In quadrilateral ABCD, each pair of opposite sides means AB is equal to CD and BC equals to AD. ये इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है. देन जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, ABCD is a पैरेललोग्राम. अब ये कैसे आप प्रूफ करेंगे, पैरेललोग्राम बताने के लिए हमारे पास क्या डेफिनेशन क्या है, इफ बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ओके, अब यहाँ इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया इसका. जब भी आप क्वाड्रिलेटरल में हमने डायगोनल ड्रॉ किया है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इन दो ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC,
AB is same as BC, BC is same as AD, and AC is common to both. So by side congruency these two triangles are congruent. जब ये triangles congruent होंगे तो क्या होगा, देखिए ये एंगल 1 जो है विच इज अपोजिट टू BC, और BC किसके इक्वल है, AD के, तो AD का अपोजिट एंगल क्या है 2, एंगल 1 इक्वल्स टू 2. ये हमारा कंक्लूजन है, बिकॉज ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA by side congruency. आप उसको डिटेल में लिख सकते हैं यदि आपको प्रूफ करना है. अब यहां पर देखिए एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 by CP. So when angle 1 equals to angle 2, which are the alternate interior angle for CD and AB? AB और CD के लिए एंगल 1 और 2 कैसे हैं, alternate interior angles which are equal. So this implies that AB is parallel to CD. Similarly, you can write angle 3 equals to angle 4, क्योंकि ये triangles congruent हैं तो ये इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और जब ये इक्वल हो गए तो ये BC और AD के लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. तो इस तरीके से if both the pairs of opposite sides are parallel then it will be a parallelogram. तो ये कन्वर्स है थ्योरम 8.2 का. Now the next property of parallelogram is the opposite angles are equal. This is theorem 8.4. बेसिकली आपको नंबर याद ना रख के स्टेटमेंट याद रखना है कि इन अ पैरेललोग्राम, सपोज ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. In parallelogram ABCD, what we have? We have to prove that angle A equals to angle C. Prove that angle A equals to angle C and angle B equals to angle D. इसको प्रूफ करना है. बहुत सिंपल बात है जो हमने थ्योरम 8.1 में किया था कि डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. देखिए यहाँ पर यदि हमने एक डायगोनल AC ड्रॉ कर दिया देन क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल D के, क्योंकि ये वाला एंगल 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है. तो ये जो रिमेनिंग एंगल है B, ये एंगल D के इक्वल हो गया. तो एक पार्ट तो आपको ये दिख गया, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D. अब इसकी जगह पर आप दूसरा डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए. मान लीजिए ये हमने ये डायगोनल ड्रॉ किया, तब क्या होगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा. मान लीजिए हमने, अब देखिए अब क्या होगा, अब ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB. ऐसा करने से ये पैरेललोग्राम में तो अब यहां पर ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए. क्यों, क्योंकि डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. तो एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल हो गया, तो ये सेकंड पार्ट हो गया. सो इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इसका कन्वर्स स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है. ये जो कन्वर्स स्टेटमेंट्स हैं कि इन अ क्वाड्रिलेटरल, इफ इसके पहले हमने देखा अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम. इट हेल्प अस टू कंक्लूड, टू प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. तो सेकंड स्टेटमेंट यहां से मिलेगा हमको कि इन अ क्वाड्रिलेटरल, थ्योरम 8.5 जो कि इसका कन्वर्स है वो ये है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ both the pairs of opposite angles are equal, then it is a पैरेललोग्राम. या सिंपल इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम. तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल में क्या गिवन है, अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा. तो इसको भी आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से प्रूव कर सकते हैं. ओके.
Now we come to the next property of parallelogram. In a parallelogram, diagonals bisect each other. So suppose ABCD, again we draw not ABCD. अब ABCD आपने बहुत बार ड्रॉ कर लिया, आप सोचेंगे कि पैरेललोग्राम ABCD ही होता है, ऐसा नहीं है, हम उसको किसी और नाम से भी लिख सकते हैं. सपोज PQRS, ओके, एक नया नाम हमने दे दिया, PQRS इज अ पैरेललोग्राम. सो इन पैरेललोग्राम PQRS, in parallelogram PQRS, PR and SQ, diagonals PR and SQ intersect each other, intersect at point O. अब आपको ये बताना है कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर. इसको बताने के लिए हमको क्या बताना पड़ेगा? OP is same as OR, means O is the midpoint of PR and O is the midpoint of SQ also, माने OQ is same as OS. ये हमको बताना पड़ेगा. तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. दैट इज क्या बताना पड़ेगा कि OP इज सेम एज OR एंड OQ इज सेम एज OS, मींस O इज द मिड पॉइंट ऑफ दीज डायगोनल्स. अब देखिए यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. तो पहले तो हमने, आप देखिए PQ जो है वो SR के इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. अब देखिए एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, ओके. एंड एंगल ये वाला जो एंगल है, एंगल 3 इज सेम एज एंगल 4. तो अब देखिए इन ट्रायंगल OPQ, two angles and a side is same as the two angles and included side of other. So triangle OPQ is congruent to triangle ORS. कैसे होगा? क्योंकि 1 equals to 2, क्योंकि PQ is parallel to SR, ये ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होंगे. अगेन if SQ is the transversal, PQ is parallel to SR and SQ is transversal, so angle 3 equals to angle 4, alternate interior angle. So by angle side angle congruency ये triangles कैसे होंगे? Congruent होंगे. ये आपके लिए, वर्क के लिए, ये हमने आपको एक हिंट या वो दे दिया. अब जब ये congruent होंगे तब क्या होगा? देखिए साइड OP, साइड्स इक्वल होंगे, इसके जो साइड्स है रिमेनिंग साइड वो इसके रिमेनिंग साइड्स के इक्वल होंगे. OP is side opposite to angle 3. Angle 3 is same as angle 4. So its opposite angle is OR. And the next side, that is OQ. OQ is opposite to angle 1 and angle 1 equals to 2. So its opposite side is OS by corresponding parts of congruent triangle. CPCT. अब ये क्या है? यही तो आपको प्रूव करना था. दैट इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो ये प्रूफ हो गया. इसका कन्वर्स क्या होगा? इस प्रॉपर्टी का कन्वर्स क्या होगा कि इन अ कन्वर्स ऑफ दिस, कन्वर्स दैट इज थ्योरम 8.7. In a quadrilateral, if diagonals bisect each other, in a quadrilateral, if diagonals bisect each other, then it is a parallelogram. It is a, अब इसके लिए क्या होगा? पैरेललोग्राम बताना है तो अब हमारे पास दो चीजें हैं. एक तो डेफिनेशन हो गया कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एक तो ये बात हो गई. या फिर हम
अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, उससे भी हम कर सकते हैं। तो हमारे पास अब बहुत सारे आइडियाज हैं। तो यहाँ पर क्या है, सपोज दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल और ये जो डायगोनल्स हैं वो कैसे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, दीज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर और ये एंगल कॉमन है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट होने से अब क्या होगा, इनके जो एंगल्स हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। माने इस ट्रायंगल में ये एंगल 1, ये वाला अपोजिट टू दिस साइड, सपोज दिस इज ABCD, तो दिस एंगल 1 is opposite to OB. OB is same as OD, so its opposite angle is 2. So angle 1 equals to 2, which are the alternate interior angle for AB and CD. अब alternate interior angle equal है, तो ये कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ऐसे ही इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, और फिर उससे हम लिख सकते हैं AD is parallel to BC. If both the pairs of opposite sides are parallel, then it will be a parallelogram. तो ये आज हमने जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है। मेनली हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल किया है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है, देन प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स कन्वर्ट्स। प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट, अ डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने देखा है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जब थर्ड हमने देखा है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये मेन प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। इनके कन्वर्स स्टेटमेंट भी ट्रू हैं। जैसे कन्वर्स क्या हो गया कि इन अ पैरेललोग्राम इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट विल, इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। सेकेंड कन्वर्स क्या हो जाएगा, एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, इसका कन्वर्स क्या होगा, इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। थर्ड जो स्टेटमेंट था कि इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसका कन्वर्स क्या होगा कि इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम। तो ये प्रॉपर्टीज और उसके जो कन्वर्स स्टेटमेंट है इनको आप प्रूव करके देख सकते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हैं जो कि इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। ओके।